So, a very good morning, students. So, yesterday what we were studying was the story, The Lost Spring, and as I told you, it was regarding two boys. About the story of the first boy, whose name is Sahib Alam. We have already discussed in our last class, right? That his family migrated from Bangladesh, Dhaka, to a place near to Delhi known as Simapuri. They were like the squatters people, wherever they find food, wherever they find residence, wherever they find good work to do. So they stayed there, and for them, garbage was like gold. When our writer Anis Chand, she met our first character Sahib Alam, so she explains how she felt and also the description of the life of the various aspects of life, that even whatever you do, whatever may be, but there are certain hindrances, certain pressures, certain outcomes, certain guidelines, certain regulations under which you have to work, and there is no route to escape, and that is known as life. The sooner you understand that, the better it is going to be for you, right? So today we are going to continue with the second part. If you want to follow, you can already follow the lecture. It has already been uploaded on the YouTube as well. You can find me, search me, PRATTYUSH Pratyush SINGH Singh on Google as well, right? And you are going to get the YouTube channel and the videos which are prepared for you. And the first part of this chapter, The Lost Spring. So today we are going to discuss about its second part. I hope that you people have followed the book and you have revised the lesson. I told you just in a short summary that what happened in our lesson, and today we are going to move ahead to this part 2. Right? Are we ready? Okay, let's begin. So this is where I start. Okay, this is page number 16 from your Flamingo book, and we finished up till Sahib is no longer his own master. जैसा कि आप जानते हैं, साहिब पहले एक्टर थे, तो कभी कभार उन्हें कॉइन्स मिल जाया करते थे कूड़े में, वो बहुत खुश होता था, बहुत हैप्पी होता था, और सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक था। जहाँ भी मर्जी होती थी वहाँ चला जाता था, जहाँ से वापस आना होता था वहाँ से वापस आ जाता था। बट अब चूंकि ये एक किसके लिए काम कर रहा है, फॉर अ टी सेलर, राइट? तो अब वो टी सेलर इज द master of Sahib. ठीक है? So now it is the part 2, which starts with I want to drive a car. As you can see, this sentence I want to drive a car is written in double inverted commas, which means what? Which means that this has been said by somebody in particular. But who? Yes, this is said by our second character of the story, which is Mukesh. I told you yesterday who is Mukesh. Mukesh is our second character from the story, The Lost Spring. He is also just like Sahib, a very poor, very old boy who has got problems for his food, right? So Mukesh insists on being his own master. अभी हमने पढ़ा साहिब की स्टोरी में कि क्या होता है और कैसे एक पर्सन अपना मास्टर नहीं रह जाता। अगर पहले से हम देखें, कोई भी पर्सन अपना खुद का मास्टर नहीं हो सकता। उसे किसी न किसी के लिए वर्क करना है। बिजनेसमैन भी काम करता है तो उसे कस्टमर के लिए वर्क करना होता है, और नहीं तो
basically he is not the master of himself, she is not the master of herself, but they are always working for others, and this is what our life is all about. अगर हम देखें कि हमारी जिंदगी किस बारे में है, तो जिंदगी का मायने ही यही है कि आप जितना जल्दी दूसरों के लिए अपने आप को एडजस्ट कर ले, उतना सक्सेसफुल, उतना फायदेमंद रहेंगे। तो मुकेश, हमारे जो दूसरे कैरेक्टर हैं छोटे जनाब, इनका कहना है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। उनका कहना है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब आप सोचेंगे कि लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी कमाल बात है मोटर मैकेनिक बनने में। एक्चुअली में क्या है कि मुकेश के लिए मोटर मैकेनिक ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अभी जो काम करता है वो उसी को इतना छोटा समझता है कि वो समझता है कि अगर वो एक मोटर मैकेनिक बन जाएगा तो शायद उसे उसकी जिंदगी का यही सबसे बड़ा फन होगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। सो पार्ट सेकंड की तरफ पढ़ते हैं, विच इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मेरी नोटबुक है और मैं इसी की नोटबुक के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताना चाहता हूँ। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज अबाउट द लाइफ ऑफ मुकेश, हु कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। कम्स फ्रॉम विच फैमिली? Comes from the family of bangle makers, right? So there is a place near to Delhi again which is known as Firozabad. Firozabad and Shikohabad, there are two places which are very famous in our India for making the glass products, especially for bangles. चूड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं। और glass blowing industry. एक बार if you remember, I was teaching you about one of the lessons in class 9. Then I was teaching you about, I also shared the experience about there are various types of glasses. राइट हम सोचते हैं कि सिर्फ ग्लास एक सिंपल ही ग्लास है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। कई तरीके के ग्लास होते हैं, ठीक है। जो चाय की दुकान पे यूज होते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर के, वो बीटेन ग्लास कहलाता है, ठीक है। ग्लास का मटेरियल सिलिका सैंड एक मोल्ड में रखी और उसे ऊपर से प्रेस कर दिया, तो दोज आर नोन एज प्रेस्ड ग्लास और बीटेन ग्लास। उससे ज्यादा फाइन क्वालिटी वाले होते हैं ब्लोन ग्लास, जो कि पूरे मटेरियल को ऐसे रख करके उसे जोर से ब्लो करके स्ट्रॉ की तरह बड़ा बना के बनाया जाता है। जैसे कि हमारे बोरोसिल वाले ग्लासेस होते हैं, देखे आपने बोरोसिल कितने क्लीन, कितने इनसाइड आउट बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, राइट। बल्ब हमारे टंगस्टन बल्ब्स, ये एलईडी बल्ब्स के पहले जो बल्ब्स आते थे हमारे, वो बल्ब्स हमारे ब्लोन ग्लास से ही बनते हैं, ठीक है। तो फिरोजाबाद हमारा ब्लोन ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। A staggering 20,000 children are a part of this business, and any law that forbids child labor is brutally ignored over here. How many children? 20,000 children. 20,000 children are involved in bangle makers, ignoring all child labor laws, right? यहां तक समझ में आएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, if you have any problem, you can ask me in the comment section below, right? Any questions regarding the chapter, any doubts regarding the chapter, you can ask me in the comment section. All right? So,
All the law is prohibited. Around 20,000 children are thrown into this business to do the work in the glass blowing industry and bangle making industries. Also the working environment and the living conditions are pathetic. रहने के लिए जो जगह और काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो पैथेटिक है, मतलब बद से भी बदतर कंडीशंस हैं. चिल्ड्रन लिव इन muddy, dirty cells and work around hot furnaces that make them blind when they enter adulthood. बच्चे एकदम गर्म furnaces. What is furnace? Furnace is the English of भट्टी. ठीक है, भट्टी में जैसे हम कुल्हड़ पकाते हैं, कभी आपने देखा होगा कुल्हड़ तो देखा आपने, मिट्टी के कुल्हड़ वो चाय पीने आते हैं. अच्छा, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग चलेंगे. ये हमारे शांतिपुर में जो गोहरी एक जगह है, गोहरी इज फेमस फॉर मेकिंग कुल्हड़. ज़्यादा मैटर होता है ना वर्ल्ड में, तो प्लास्टिक ने इतना बुरी तरह से और पेपर कप्स में टेक ओवर कर दिया है कि उनका बेचारों का बिजनेस इज शटरिंग. सो वो मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे ऐसे शैक्स, बस दो तरफ से दीवार, ऊपर से एक चक्कर ऐसे मिट्टी का बना दिया और उसी के अंदर वो बच्चे रहते हैं. मडी डर्टी सेल्स में गंदे भद्दे, which is also known as dingy is a word. Dingy means muddy and dirty. ठीक है, और वो उस फर्नेस में इतनी गर्म होती है, वो भट्टी की आंच इतनी ज्यादा होती है कि वो बचपन में उसमें कांच बनाते बनाते काम करते करते जैसे ही वो अडल्टहुड में 18 साल 17 साल 18 साल 19 साल की तरफ पहुंचते हैं, तब तक उनमें से बहुत ढेर सारे बच्चे बेचारे ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं. Since they are weighted down by death, they cannot think or find any way to escape this trap. चूंकि उनके ऊपर इतना लोड, इतना प्रेशर, इतना उधार लिया हुआ होता है उन लोगों ने, और वो काम करते 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 दिन रात एक करके मेहनत करते करते भी उस उधार को चुका नहीं पाते. नतीजा क्या होता है कि वो उस बिजनेस को कभी छोड़ ही नहीं पाते और उनकी जिंदगी वही काम करते करते बीत जाती है. उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, उन्हें ब्लो करते करते आंखें खराब हो ही जाती है. दे बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 18 ओनली. So the politicians, policemen, middlemen and the bureaucrats obstruct their way of progress. जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहें तो पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, जो बीच के लोग होते हैं, मिडिलमैन, वो सारे लोग उनका रास्ता रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं. Most of their women think this is fate and just follow it. उनकी औरतें काफी सारी बस इतना ही सोचती हैं कि उनका नसीब ही यही है, उन्हें जिंदगी भर यही काम करना है, उनके लिए सिर्फ यही काम बना हुआ है. तो वो उस बारे में कुछ सोचती ही नहीं, बस चुपचाप काम करती जाती है. बट मुकेश हैज ड्रीम्स. लेकिन इन्हीं में मुकेश जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा बच्चा है जिसके ऊपर ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, मुकेश चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए. एंड ही वॉक्स एंड वॉक्स अंटिल ही रीचेस द गराज. और उसने डिसाइड किया कि वो चलते 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 हजारों किलोमीटर भी चलना पड़े, वो चलेगा. और जब तक वो अपने लक्ष्य तक, अपने ध्येय तक, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो रुकेगा नहीं. ठीक है, वापस से आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पर. कुछ समझ में आ गई आपको स्टोरी? मैंने आपको एक शॉर्ट नक्शल में बता दिया कि हमारी कहानी में एक्चुअली हो क्या रहा है. अब आप टेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसे टेक्स्ट से कोरिलेट करिए. ओके, आर वी रेडी? ऑलराइट, लेट्स गो. So it is the center of India's glass-blowing industry, Firozabad, where families have spent generations working around furnaces,
welding glass, making bangles for all the women in the land. It seems पूरी दुनिया के लिए चूड़ियां बनाते हैं, पूरी दुनिया की औरतों के लिए, और काम करते करते उनकी पूरी जिंदगी चूड़ियां बनाते बनाते खत्म हो जाती है, जाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, बीत जाती है. Mukesh family is among them. Now they don't know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. मुकेश उन बच्चों में से एक है कि जिनको पता नहीं है कि सरकार ने ऐसे लॉ बनाए हैं जहां पर चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, जहां बच्चों को काम नहीं करना चाहिए. उनको बेचारों को पता ही नहीं है, तो उन्हें झोंक दिया जाता है और वो काम करते रहते हैं. उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए काम तो करना जरूरी है. वो उसी गंदे मैले कुचैले सेल्स में रहते हैं जहां पर लॉ ने, सरकार ने उन्हें फोर्स कर रखा है, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ करती नहीं. Could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून वहां पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि जहां पर ये सारे 20,000 बच्चों को अंधा कर दिया जाता है. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों की जो रोशनी है, जिसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे घर ले जाएगा, अभी पता लगता है किन्हें प्रॉमिस किया था. वेट, बाय द टाइम एट द बैक ऑफ योर माइंड यू कैन थिंक अबाउट इट कि किसने प्रॉमिस किया होगा. मी कौन हो सकता है? विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट. मुकेश की आंखों की रोशनी धीमे धीमे ठीक हो रही है, क्योंकि वहां पे काम करते करते खराब सी हो गई है, ठीक से उसे दिखता नहीं, लेकिन वो सपना उसने छोड़ा नहीं है. राइट, वो सपना अपना जीना चाहता है. वो मोटर मैकेनिक बनने के लिए कुछ भी करने के लिए. राइट, सो वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज. हम चले जा रहे थे गंदी बदबूदार गलियों में जो कि कूड़े के ढेर से चोक थी, फंसी हुई थी. पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी दीवारों वाले घर, मैंने चेहरे पर्दों वाले घरों के अगल बगल से हम लोग निकलते जा रहे थे. टूटे फूटे दरवाजे बिना खिड़की के, जिसमें क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रीमियरियल स्टेट. एक साथ जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, इंसान, 20-25 लोग एक ही घर में घुस करके किस तरीके से रह रहे थे. दैट कंडीशन इज इवन बियॉन्ड इमेजिनेशन. इट इज हॉरिबल. सो he stops at the door of one of such house. मुकेश ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक गया and he bangs a wobbly iron door with his foot. अपने पैर से उसने एक लोहे का दरवाजा ठक 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 खटखटाया and pushes it open, और उसे खोल दिया. He entered a half-built shack. एक आधा बना हुआ टूटा सा shack था. Shack, you understand? कल मैंने बताया आपने 3 दिन पर एक तरफ लगा दिया, थोड़ी सी छत लगा दी, आधी टूटी सी 3 तरफ से दीवार बनी, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, एक सर ढकने के लिए छत बनी हुई है कि अगर बारिश हो तो डायरेक्ट पानी उनके सर में ना पड़े. टपकती वो भी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है. राइट, इट इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. एक कोने पर एक छोटा सा चूल्हा बना है जिसमें कुछ सूखी पत्तियां, सूखी घास, जिसके ऊपर एक बाटी छोटी सी चली हुई है, एक डेगची, एक बर्तन जिसमें कुछ स्पिनच, कुछ पालक की पत्तियां उबल रही हैं. On the ground in a large aluminium platters, more chopped vegetables, a frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. और एक एल्युमिनियम की परात में कुछ और कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई हैं. एक फ्रेल बेचारी दुबली पतली मरियल सी, बिना आधे अधूरे फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक लेडी अपने परिवार के लिए खाना बना रही है. ठीक है. Through eyes filled with smoke, she smiles. धुआं भरा हुआ उनकी आंखों में टप्पर में उन्होंने देख करके मुस्कुराहट दी. She
द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, ठीक है, मदर नहीं है, बी वेरी क्लियर। Who was the lady who was cooking the food? This might be a question in Mukesh's house, so you have to answer that she was the wife of Mukesh. Very good. Elder brother, not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. Her husband Mukesh and their father. 3 लोग रहते थे, मुकेश के बड़े भाई जो कि उनके पति, और मुकेश और उनके बड़े भाई के फादर, यानी कि उनके फादर इन लॉ। When the older man enters, जब बूढ़े वाले आते मुकेश के फादर आ गए, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. क्या हुआ? जैसे ही वो आ गए तो थोड़ा सा दीवार के पीछे अपने आप को कर लिया as a gesture of respect. Respect doesn't require any money, a big house, a swanky cars, or minted money in your bank account. Respect requires the generosity from inside. इज्जत अंदर मन से आती है, उसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती। कोई एल्डर है, उनके ससुर है, वो आ गए। हाँ, आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया है। आज के ज़माने में हम सोचते हैं कि कितने बदतमीज़ फादर इन लॉ है, अपनी बहू को उन्होंने घूंघट करने को कहा है। घूंघट खींचो, ये करो, सामने बताओ, बड़े जगह पे बताओ, तुम घर की बहू हो, नौकरानी की तरह रहो। आजकल का ज़माना बहुत चेंज हो गया, लोगों ने उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया है। लेकिन मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहता, मैं इसे गलत इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। और फिर घर में जब और कोई नहीं है तो उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जैसे वो अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती है, वैसे वो इनका भी ख्याल रखें। ऑफ कोर्स अगर वो उनको फोर्स नहीं करते, ज़बरदस्ती मारते, पीटते, डांटते, फटकारते नहीं हैं तो, राइट? Just it is a thought that we should think about. So, as a custom demands, daughter-in-law must clean their faces before male elders. जैसा कि रीति रिवाज है, ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है। आज के ज़माने में ऐसा घूंघट और नहीं होता। हमारे भी मॉम एंड डैड कहते हैं कि दे अलाउ द daughter-in-law. daughter-in-law क्या, उसमें से लॉ भी हटा दिया गया, वो डॉटर ही है। जैसे हमारी यंगर सिस्टर है, वैसे वो भी है। जैसे वो घर में रहती है, वैसे वो भी घर में रहती है। अगर वो लॉन्ग स्कर्ट पहनना चाहती है तो ठीक है, लॉन्ग स्कर्ट पहने, बट दैट रेस्पेक्ट शुड बी देयर। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू क्रॉल अप व्हेन दे फॉरगेट अपॉन देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हेन दे फॉरगेट अपॉन देयर बाउंड्रीज। जब वो अपनी दीवारें, अपनी सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं, किसी चीज़ की भी अति खराब होती है, राइट? तो जल्दी से उन्होंने घूंघट कर लिया, सामने से छिपा लिया। इन दिस केस द एल्डर इज इन प्रोवाइड बैंगल मेकर। इन दिस केस, हमारे केस में जो बड़े वाले हैं, कौन बड़े वाले? फादर ऑफ मुकेश। बड़े वाले आदमी कौन है? मुकेश के पिता जी हैं, और क्या है? इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मीन्स मतलब बहुत मजे हुए, बहुत अच्छे, राइट? बहुत अच्छे, बहुत मजे हुए चूड़ी बनाने वाले पर्सन हैं, बहुत सालों से बना रहे हैं, तो अब वो बिल्कुल सेट हो गए, बहुत अच्छी खूबसूरत चूड़ियाँ बनाते हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. पहले बेचारे टेलर थे, दर्जी थे, कपड़ा काट करके कपड़ों की सिलाई किया करते थे। उसके बाद चूड़ी बनाने वाले बन गए, लेकिन बेचारे अभी भी अपने इस टूटे फूटे मकान को रेनोवेट नहीं करा पाए हैं, ठीक नहीं करा पाए। कभी इतना पैसा नहीं जोड़ पाए कि खाने के अलावा कुछ पैसा घर की मरम्मत में लगा पाए। जो भी कमाते रहे होंगे वो सब कुछ शायद खाने में ही यूज हो जाता होगा। He has failed to renovate a house, sending his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. बस इतना वो कर सकते थे जितना उन्होंने किया, क्या कि अपने दोनों लड़कों को देश और ये बड़े भाई, इतने बड़े
बैंगल मेकिंग। ठीक है, चूड़ियाँ बनाना सीखने के लिए बस इतने पैसे कमाए थे कि उन्हें भेज करके स्कूल में इतना पढ़े लिख जाए चूड़ी बनाना सीख पाए। ठीक है, इन हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अच्छा, मुकेश की ग्रैंडमदर भी अभी अलाइव है। मुकेश की दादी जी ने कहा कि इनके नसीब में, इनके करम में, who has brought her own husband to blind with the dust from polishing the glass of bangles, वो दादी जी मुकेश की ग्रैंडमदर, मदर इज नॉट अलाइव आई बिलीव, क्योंकि वो मेंशन नहीं हुआ है, देखते हैं आगे अगर आ जाए तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुकेश की ग्रैंडमदर अलाइव है और ग्रैंडफादर मुकेश के उसी बैंगल मेकिंग से 9 हो गए थे और उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, शी स्माइल्स, उन्होंने भी मुस्कुराहट दी। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, every other yard, every street in Firozabad, spirals and spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow, lie in the molds in unkempt yards. Unkempt yards, sorry. इसी तरीके के खुले मैदान, यार्ड, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, कोर्ट यार्ड, आंगन, उन्हीं आंगन में सभी के घरों में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, चूड़ियों के कलर्स, तरह तरह के खूबसूरत डिजाइन और वो पड़े हुए थे, उसका ढेर लगा हुआ था, क्योंकि सालों साल से वो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, चूड़ियाँ बना रहे थे। ठीक है, pushed by a young man along the narrow lanes of the shanty town and in dark unpents, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, building pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. ठीक है, अंधेरे में बैठ करके कोई उनके पास प्रोटेक्टिव ग्लासेस नहीं है, कोई चश्मे नहीं। आपने वेल्डिंग करने वाले को देखा होगा कि एक फेस शील्ड, मास्क, एक ग्लासेस, चश्मा कुछ लगाए रहते हैं, राइट? डू माइंड आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर। तो आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले पर्सन को हमेशा वो अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लासेस, चश्मा कुछ ना कुछ लगाना, पर इस केस में इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी अंधेरे में काम करते 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 बेचारे उनकी आंखें जब तक वो बड़े होते तब तक वो चली जाती है। ठीक, सविता, a young girl in a drab pink dress sits along an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the cogs of a machine. सविता एक छोटी सी बच्ची गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने हुए, ड्रेस पहने हुए, अपनी एक बूढ़ी सी लेडी के बगल में बैठी हुई, जल्दी जल्दी अपने हाथ उसके एक जैसे मशीन, मैकेनिकल मशीन की तरह चल रहे हो और वो अपनी मदद की हेल्प कर रही है। What does she knows the scarcity of the bangles she helps me? शायद मैं जानती हूँ, मैंने उम्मीद करी उसे देख करके कि शायद मैं कौन है, अब तक आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं हमारी राइटर अमीश जंग के बारे में कहा आज, क्योंकि उनकी कही हुई स्टोरी है और वही लिख रही है, ये सारे एक्सपीरियंसेस उनके हैं। Scarcity of the bangles she helps make it symbolizes an Indian woman's सुहाग। उसको शायद ये नहीं पता है कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो हमारी हिंदुस्तानी औरतों का सुहाग को दर्शाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इतना तो आप समझते ही हैं। पूजा वगैरह में हमारी मदर, जहाँ पर फादर्स की डैड लोगों की पूजा होती है, करवा चौथ और लाइक मूव राउंड एंड राउंड द ट्रीज विद द थ्रेड, धागा लेकर के वो हैं कौन से वर्ड की पूजा होती है ना, इसमें चारों तरफ प्रदोष और वटामावस्या एंड दीज थिंग्स, राइट? इसमें बंगल के चारों तरफ धागा बांधते हैं, राइट? हाँ, सो उस बेचारी बच्ची को क्या पता कि किसके लिए है क्या निशानी और वो क्या बनाती है, बट हाँ उसे चूड़ियाँ बनाना पता है, आधा प्रोसेस उसे पता है, वो अपनी
मदर या उनकी जो भी हो उनकी मदद करती है. It will dawn on her suddenly one day when her head is sprayed with a red wheel. Her hands dyed red with the henna, and red bangles rolled onto her wrist. एक दिन वो बेचारी जब भी ब्याह की जाएगी, जब उसकी शादी कर दी जाएगी, उसके सर पे भी एक लाल रंग का घूंघट आ जाएगा, तब उसके हाथों में भी ये चूड़ियाँ आ जाएंगी, उसके मत्थे पर एक सिंदूर का टीका होगा और पूरा डिस्क्रिप्शन एक मैरिड होने का दिया गया है. तब शायद वो जाकर के समझ पाएगी कि एक्चुअली वो काम क्या करती है. ठीक है. तो beside her, like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. वो जैसे कि उसकी मदर के हाथों में चूड़ियाँ दिख रही हैं, क्योंकि वो एक मैरिड वुमन होंगी. काफ़ी साल पहले उन्होंने ये चूड़ियाँ पहनी होंगी जब उनकी शादी हुई होगी, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं. ठीक है. She still has bangles and एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says, उन्होंने कहा एक वक्त शेर भर एक्चुअली शेर और सवा शेर मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ओल्ड वेइंग व्हाट डू यू कॉल मेजर. ठीक है. जैसे हम किलोस ग्राम्स होते हैं, उसी तरह शेर होता था. पाव शेर सवा शेर कहते हैं ना. 1.25 इज लाइक सवा शेर, पाव शेर लाइक 250. तो इस तरीके से तो मतलब कहने का कि उनको खाने का स्वाद और उसकी मिर्च और मसाला और ये तो दूर की बात है, वो लोग तौल करके कि भाई थोड़ा सा इतना खाना मिल जाए कि पेट भर जाए, वही वो कह रहे हैं कि इतना खाना नहीं मिल पाया एक वक्त कि हमारा पेट भर सके. वो लेडी ने कहा एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. हिंदी में लिखा हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है. In a voice great of joy, she has not enjoyed one full meal in her entire lifetime. पूरी जिंदगी जब से वो पैदा हुई है तब से उन्होंने एक वक्त भी हर पेट खाना नहीं खाया है. काम करते करते her husband, one more line. She has not even enjoyed a full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. यही उन्होंने कमाया है, यही उन्होंने reap, फल फ्रूट्स जो होते पक जाते हैं ना, उन्होंने क्या पकाया है, उन्होंने यही पकाया है. उनका जीवन इस तरीके से पका है कि उन्हें आज तक भी एक वक्त का ठीक से खाना नहीं मिला. Her husband, an old man with a flowing beard, says, उनके पति जिनकी एक लंबी सी दाढ़ी, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं पता सिवाय चूड़ियों के. ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैं कुछ भी कर पाया हूँ तो बस मैंने एक ये जो आप देख रहे हैं जिसे मकान कह तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना ही मैं बना पाया हूँ अपने परिवार को रहने के लिए, और कुछ नहीं कर पाया हूँ. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. ऐसा लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी लोग अपने जीवन में घर बनाने का उनकी तमन्ना और इच्छा होती है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी बेचारे घर नहीं बना पाते. यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन यहाँ पर एक जो घर है उनका तात्पर्य सिर्फ एक छप्पर से, सिर्फ एक छत से, कि वही घर है. ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद के लोगों ने शायद सपने देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूरे होने वाले नहीं हैं. They get frustrated, they get disheartened. साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते वो वहीं पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं. Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. मैंने कुछ इकट्ठा हुए कुछ लोगों से, कुछ आदमियों से पूछा कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं. मतलब आप लोग
यहाँ से चूड़ियाँ बेचते हैं किसी बीच वाले आदमी को, वो बीच वाला आदमी चूड़ियाँ बेचता है किसी बड़ी फैक्ट्री को, बड़ी दुकान को, बड़े शॉपकीपर को। आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव बना करके खुद ही क्यों नहीं चूड़ियाँ बेचते? उन्होंने ऐसा कहा, हमारे राइटर ने ऐसा पूछा अनीश जी ने। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? जहाँ पर उनके फादर और फोर फादर्स को इन्हीं बीच वाले बिचौलिए लोगों ने कैद कर लिया था, दबा दिया था, उसी में दबा करके मार दिया। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. उन्होंने कहा अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, कोई कोऑपरेटिव बना भी लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो पुलिस वाले हम ही को पकड़ के ले जाएंगे, हम ही को मारेंगे और हम ही को परेशान करेंगे। There is no leader among them who one could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. ये सारे लोगों ने मिल करके उनको इस कदर दबा दिया है, उनके बच्चों को इस कदर दबा दिया है, इतना भारी बोझ लाद दिया है कि वो बच्चा चाह करके भी वो अपने सर का बोझ हटाए तो हटाए कैसे? ठीक है, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले उसको एहसास हो, वो बच्चा जो उनके परिवार में पैदा होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हमारा जीवन चूड़ियाँ बनाना ही है, हमारा जन्म चूड़ियाँ बनाने के लिए ही हुआ है। जैसे हमारे पिताजी चूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरह हम भी चूड़ियाँ बनाते रहेंगे। To do anything else would need to dare, and daring is not part of his cheer. I want to be a motor mechanic, he repeats. लेकिन मुकेश ने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। I am cheered. I want to be a motor mechanic. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. उसने कहा कि मैं गैराज में जाकर के काम सीखूंगा, मैं गाड़ियाँ बनाऊंगा, मुझे गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक है, मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा तो शायद एक आध दिन में गाड़ियाँ नहीं चला पाऊँ। मुझे चूड़ियाँ बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ। नरेटर ने बताया कि ये जो गैराज है आपके घर से बहुत बहुत दूर है। तो मुकेश ने क्या कहा, कितनी भी दूर हो मैं वॉक कर लूँगा। He insists, do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. मैंने उनसे पूछ लिया, हमारी नरेटर कहते हैं कि तुम्हारी तमन्ना गाड़ी चलाने की है तो तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, हवाई जहाज चलाने की तमन्ना नहीं है, छोटा क्यों सोचते हो, और बड़ा सोचो, पायलट बनने की तमन्ना क्यों नहीं है? कुछ देर में शांत हो गया, उसके बाद उसने कहा नो। Staring at the ground, there is a small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. एक उसके अंदर एक अजीब सी शर्म है। He is content to dream of cars that he sees hurling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. शहर में उसने गाड़ियाँ तो देखी हैं, हवाई जहाज कभी कभी साल में एक आध निकल गए होंगे फिरोजाबाद के ऊपर से, तो उसने देखे ही नहीं, और अगर देखे भी तो उसने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि वो भी कोई चीज़ है। हवाई जहाज भी ऐसा कुछ होता है कि जो वो बन सकता है, जिसको वो देख सकता है, राइट? तो ये इतनी सी थी हमारी कहानी। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो बनना तो चाहता था, इच्छा सबकी होनी चाहिए, आप कहीं भी हो, किधर भी हो। एंड आई एम श्योर द स्टोरी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अनीश ने वहाँ से वापस आ गई होगी, बट मैं आई एम प्रीटी श्योर दैट वो बच्चा जो इतना ड्रीम रखने की सोच सकता है, वो बच्चा ज़रूर अपनी लाइफ में मोटर मैकेनिक बना होगा। क्योंकि टू बिकम एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग, यू हैव गॉट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट डेयरिंग टू ड्रीम। सपना देखने की इच्छा होनी चाहिए, और उस सपने के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून, पैशन, कि मुझे ये काम करना ही करना है। अगर आप ये ठान लीजिए तो आप कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सलाह मिलती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग मिलकर के भाई चूड़ियाँ बनना तो खत्म नहीं हो सकती। चूड़ियाँ एक ऐसी चीज़ है जो कि फैक्ट्री में नहीं बन सकती, बनाएंगे तो भी यही छोटे मोटे लोग, और अगर उसे ख़त्म कर दें तो वो लोग जिनकी ज़िंदगी
से चल रही है उनका क्या होगा? उनके भी तो रोज हजारों बच्चे पैदा हो जाते हैं वहाँ पे, वो बड़े होकर वो भी चुड़ियाँ बनाने लगते हैं, तो वो खत्म नहीं हो सकता। जरा मेरी बात को समझिएगा, सिस्टम को चेंज करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। खुद को सिस्टम के हिसाब से चेंज करिए। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सपने देखिए, लेकिन उसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए, पसीना बहाइए, अपना काम करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहिए। लाइफ का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये प्रेशर है, दबाव है, अरे बाप रे इतना बर्डन है, ऐसा है वैसा है, तो आई एम वेरी सॉरी बट यू वोंट बी एबल टू रीच एट एनी पॉइंट, एनी कंक्लूजन। आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। कहाँ पूछा गया था क्यों लोग गांव छोड़ करके शहर आ गए, पता है आपको, पढ़ा है अभी हमने। I want you all to answer these questions from on your own, and if there is any problem with one of the questions, so we will discuss it on, right? हम क्लास 4, 5, 7, 8 में नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको स्टोरी समझ में आ गई है, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स मुझसे करिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो यू हैव माय नंबर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन मार्क, you can comment, you can ask me any question anytime, any place. My email ID is available with everybody and I am reachable at any point of time, right? तो shall we call it a day? कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को इस चैप्टर में समझ में नहीं आई मुझे प्लीज बताइए। एनीथिंग? ओके, सो चलो ठीक है, अगर अभी नहीं है तो बाद में भी आप क्वेश्चन कोई चीज़ जो आपको चैप्टर में नहीं समझ में आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आई विल आंसर यू बैक, और मुझे मेल भी कर सकते हैं आप, यू कैन सेंड मी एन ईमेल आल्सो, राइट। सो लेट्स कॉल इट अ डे, दिस एंड्स ऑफ द चैप्टर ओवर हियर, द लास्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ टू बॉयज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, इट गिव्स अ वेरी मीनिंगफुल, पावरफुल मीनिंग टू आवर लाइफ, हाउ वी शुड लीड आवर लाइफ, राइट। So we will meet again in the next class with the new chapter. Okay? Thank you very much.